Okay. Getting a lot of new features. Some gets activated automatically without you need it. Like whatever you are saying, it get recorded in writing transcript. I never asked for this. So I was just struggling with that. Okay. Let me share the screen. So this is what we discussed in the last lecture. So yeah. So in continuation to our last lecture, if I want to draw this the wiring diagram of a start push button and a stop push button, and then output contactor. So this is how it should be. So here we have this is this card input card. So we have one start push button, another is start push button. These two are connected with input modules, pin number 6 and pin number 7, as we decided in the last lecture. The output is contactor coil. No, that is one contactor coil. So discrete output card is connected with output coil at certain port what we defined, in our program. So basically what we say that in a switch start, if I press this button, if I draw this, then what happens? This is contactor is on. So it gets energized. The moment I press in switch stop, if I press this button, this get opens automatically, and then this get de-energized. So it is analogous to the latching circuit of set and reset. So that is why it is written S and R. So if I switch and this, start stop button is like input RS flip flop. If I say so, we can take this as analogous to R and S input. So the moment you press start button, the contactors get closed and the output coil energized, and your relay will allow the function to happen whatever you program. The moment you press second button in switch stop, so this will open it, and what will happen, this will de-energize the contactor, and then the condition will be reset. It is everything is stopped. So this is another way of representing, the connection which we studied yesterday. So this is what it is. If in switch start, output contactor. So in switch start, then output contactor. So same is the sequence what we studies. If start stop push button simultaneously press, then what will happen? अगर आपने दोनों को एक ही साथ दबा दिया तो क्या होगा? आपने इन स्विच को दबाया तो आपने इसको आउटपुट कॉन्टैक्टर को सेट कर देगा, फिर आपने स्टॉप को दबाया तो रीसेट हो जाएगा. तो it will be set and reset. That will happen. Okay, so this is one of the way of representing this connection in PLC diagram, which is analogous to set and reset, basically the latching operation. ये भी कहीं कहीं इस तरीके से भी इसको शो करते हैं. So don't get confused if it is asked differently. Now coming to the other kind of PLC diagram for transitional event. Transitional event का मतलब, can anybody tell me what is the meaning of transitional event? जो दो इवेंट के सर, जो भी इवेंट प्रोसेस और उसके बीच में क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है. Not exactly. और कोई आंसर?
चेंजिंग स्टेट जो होता है। Some sort of, yes. सर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ये। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, दैट इज द सर करेक्ट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के दरमियान जो भी सर प्रोसेस हो रहा है वो। Exactly, that is the answer. That is the correct answer. When it is happening for a short duration of time, the transition is happening. Could be from 1 to 0 or from 0 to 1. That's the transition. Okay. So उस ट्रांजिशन इवेंट को अगर हम अपने लैडर डायग्राम में दिखना चाहें कि साहब ये ट्रांजिशन हो गया, आप में से अभी पता नहीं, अभी तो आप लोग थर्ड ईयर में हैं, मगर जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम आउटपुट जिस जिस पिन पर हमें आउटपुट लेना होता है वहां पर हम एलईडी लगा देते हैं। तो अगर 010101 वहां पर हमारा आउटपुट आता है तो एक तरीका ये है कि वो 01 को हम सीआरओ पे प्लॉट कर लें, उसको प्रोब लगा के हम सीआरओ पर लें तो सीआरओ पर 0101 ऐसे लिख के आ जाएगा, आई मीन द वेव फॉर्म विल कम। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने उस पर कोई इंडिकेटिंग डिवाइस लगा दिया है, एलईडी हमने लगा दिया। सो एलईडी लगाया हमने तो व्हाट विल हैपन, जब 0 होगा तो एलईडी बंद हो जाएगी, 1 होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। सो 0101 एलईडी विल कीप ब्लिंकिंग। तो जब बेसिक माइक्रो कंट्रोलर किसी को सिखाया जाता है उसमें सबसे पहला प्रोग्राम यही किया जाता है कि साहब ये इनपुट है और इस पोर्ट पर एलईडी लगा हुआ है तो इस एलईडी को आपको ब्लिंक कराना है। तो कैसे कराएंगे आप? So it is basically a test of indicating output, what is happening. हो क्या रहा है, ट्रांजिशन इवेंट है तो ये हो क्या रहा है, हाउ विल यू सी दैट? आपने कोड लिख दिया उसके अंदर, मगर उसके आउटपुट पर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाउ विल यू डू दैट? सो दैट्स द ट्रांजिशन, यू नो, दैट्स द इंडिकेशन। आज से मेरा ख्याल है 4 साल पहले एक ग्रुप था बीटेक का जिसने मेरे साथ प्रोजेक्ट किया था और हम एक सर्किट डेवलप कर रहे थे and that circuit was for driving metal halide HID lamps. Basically जो आप देख रहे हैं ना ये CFL लैम्प्स, HID लैम्प्स, तो इस तरीके के पूरे दुनिया में करीब 6000 तरीके के लैम्प्स हैं, 6000 टाइप्स लैम्प्स। आपके सेल फोन में एक लैम्प लगता है, हम यहाँ लैपटॉप में बैठे हुए इसके स्क्रीन पर एक लैम्प है जिसकी लाइट से हम देख रहे हैं, घरों में एक लैंप होता है, स्टेडियम में लैंप होता है, स्कूटर में अलग लैंप होता है, 4 व्हीलर में अलग लैंप होता है, एंड यू नो उसी तरीके से स्टेडियम में होता है, शोरूम्स में लैंप लगते हैं। तो उसमें बहुत तरीके के लैंप्स, यू नो 6000 तरीके के, एक एस्टिमेट ये है कि 6000 टाइप्स ऑफ लैंप्स आर मेड वर्ल्ड वाइड टुडे फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। और हर लैंप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको ड्राइव करने के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट बोलते हैं। तो किसी को ऑन करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, किसी को नॉर्मल में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कोई हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कोई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये ड्राइव होती है फ्रॉम दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो उसमें एक लैम्प था मेटल हैलाइड HID लैम्प। सो मेटल हैलाइड HID लैम्प में उसकी प्रॉपर्टी ये है, उसका जो क्लेम है उस कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज में आती है, ओसराम, फिलिप्स, जी, तो उनका क्लेम ये है कि जो इसका लाइट का स्पेक्ट्रम है, यानी जो उसका लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो उसका कंपोजिशन है, वो सनलाइट से मैच करता है, सो दैट यू नो यू विल गेट अ रियल कलर। इसलिए इस लाइट को स्टेडियम्स में लगाया जाता है, जो स्टेडियम में डे नाइट मैच होता है उसमें ज्यादातर मेटल हैलाइड HID लैंप ही लगाया जाता है। Why? Because it is in इसका कंपोजिशन सनलाइट से मैच करता है, तो वो दिन होने की एक जो है एक फीलिंग आती है थोड़ी सी, तो यू विल गेट रियल कलर। इवन यू नो इवन जो शॉप्स हैं, आई मीन देयर आर सर्टेन शॉप्स, शोरूम्स हैं यूएस में, एंड दोज शोरूम्स आर you know they have given in writing that after putting this metal halide HID lamp in their showrooms, they are able to increase their sell in the product। क्यों? वो कह रहे हैं कि कस्टमर हमारा आपसे बहुत खुश है कि जो हमारे दुकान के अंदर जो उसको जैसे कपड़ा है या लेदर प्रोडक्ट है उसका जो कलर यहाँ दिखा वही बाहर दिखा, तो इज वेरी हैप्पी। जनरली क्या होता है, अभी मार्केट में जाइए तो दुकानदार आपको बेवकूफ बनाते हैं,
कि वहां तो बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लगा के आपको दिखेगा चमकीला चमकीला, और जैसे बाहर आपने खरीद के बाहर निकले तो आपने जब रियल लाइट में देखा तो कुछ और निकला। तो इससे जो है क्रेडिट खराब होती है। तो इस लैंप के लगाने से कस्टमर्स को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये धोखेबाज नहीं है, ही इज डूइंग द करेक्ट थिंग्स। सो उन्होंने फिर उनकी सेल बढ़ गई तो उन्होंने लिख के दिया। एनीहाउ, दिस इज जस्ट अ स्टोरी टू इन्फॉर्म यू व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एरिया। बट इस पर बटर हाइलाइट एचआईडी लैंप पर एक कंट्रोल हम डेवलप कर रहे थे अपनी लैब में। हमारे स्टूडेंट्स थे, बीटेक का ग्रुप था और उसमें एक एमटेक के स्टूडेंट थे। वी वर डेवलपिंग अ सर्किट इन द लैब। तो इस लैंप की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये ऑन होते वक्त तो हाई फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, और नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इसके अंदर जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म चाहिए वो लो फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पर करेंगे तो व्हाट विल हैपन। जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपका जो मैग्नेटिक्स है उसका साइज बढ़ जाएगा। योर मैग्नेट विल बिकम ऑफ दिस मच साइज। अगर लैंप को चलाना है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, और you cannot afford to operate this lamp at high frequency। अब क्या किया जाए? अब उसके लिए एक सर्किट ऐसी हम लोगों ने डेवलप की कि उसमें लैंप को तो दिखे कि साहब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिखे कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन इज, व्हाट वी डिड, what we did is we designed a powertronic circuit full bridge inverter। कुछ इस किस्म का सर्किट हमने डिजाइन किया और यहाँ पर हमने लैंप लगाया। तो हमने क्या किया कि हमने इस स्विच को, यानी लेट्स से दिस इज स्विच नंबर 4, तो फिर स्विच नंबर 4 को हमने परमानेंट ऑन कर दिया थोड़ी देर के लिए। दिस इज ऑन, और ये ऑफ रखा थोड़ी देर के लिए, और ये दोनों स्विच 1 और 2 इसको हमने टॉगल कराया। ये ऑन है फिर ये ऑफ है, ये ऑन है तो ये ऑफ है, और ये इसको हमने जो है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऑन रखा, और इन दोनों को हमने टॉगल कराया हाई फ्रीक्वेंसी पर। सो जो हमें करंट और वेवफॉर्म मिली, दिस वाज लाइक, ये ऐसी वेवफॉर्म तो लैंप में जा रही थी, और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये यहाँ मिल रहा था जिगजैग 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 सब मिल रहा था। So basically, power electronic circuit was running at high frequency, but lamp was seeing as a low frequency signal. That's what we designed. और फिर हमने इसको ये चेक किया, लैंप को भी चेक किया, पर फाइनली उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर से रियलाइज किया। और माइक्रो कंट्रोलर का ये जो स्विचिंग है, इसको देखने के लिए हमने एलईडी लगाया था उसके ऊपर। द पॉइंट आई वांट टू मेक इट दैट वी फाइंड आउट दैट सिग्नल विद द डिवाइस कॉल्ड एलईडी। उस एलईडी से हमने उसको चेक किया था कि ओके, ये हमारा स्विच ऑन है फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, और फिर ये दोनों स्विच एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर टॉगल कर रहे हैं। तो वो एलईडी वाज शोइंग दैट यस इट इज हैपनिंग। फिर हमने उस सर्किट को पेटेंट कराया एंड नाउ इट इज अंडर एग्जामिनेशन, और फिर हमने उसको पेपर पब्लिश किया। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेल प्लेस्ड नाउ। सो so that is why indicating device is one of the way of showing what is happening at the output। Okay, so इस केस में भी here we generally क्या ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ तो उसको हम टेस्ट लैंप लगाते हैं आउटपुट पर। टेस्ट लैंप हमारा क्या कोई बहुत बड़ा लैंप थोड़ी ना, एलईडी लगाते हैं हम इसके ऊपर। इस आप टेस्ट पुश बटन आप दबाइए और वो ट्रांजिशन दिखाएगा कि हाँ साहब ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यहाँ पर जैसे लेयर डायग्राम नीचे दिया हुआ है पीएलसी प्रोग्राम में, तो जैसे आपने पॉजिटिव दबाया इनपुट टेस्ट को, तो आउटपुट टेस्ट 1 का जो लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। जैसे आपने दूसरा दबाया निगेटिव टेस्ट आपने, तो वो जो ट्रांजिशन है वो ग्लो कर जाएगा। बट देन फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इट विल ग्लो। आपने एक मरतबा दबाया तो वो ग्लो करेगा, बार बार आप दबाएंगे तो भी एक ही मरतबा ग्लो करेगा। सो दिस इज शोन हियर इन टाइमिंग डायग्राम। इसी को कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। ये इनपुट टेस्ट है। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब योर सिग्नल इनपुट टेस्ट का सिग्नल 0 to 1 जा रहा है, when your signal is going from 0 to 1, that is called positive transition, जो हमने डिजिटल सर्किट में
पढ़ा था स्पेशल क्लास में। तो जब ये ट्रांजिशन होगा तब इस ड्यूरेशन के लिए ये पल्स जनरेट कर देगा, एक ब्लिंक आएगा, एक बार लैम्प जलेगा और वो आपको दिखा देगा कि यस दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड। और एक तो फिर उसके बाद ये लो हो जाएगा। ऑल्दो योर इनपुट टेस्ट इज पॉजिटिव, जो इनपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव है, यू सी दिस, ये पूरा जोन जो है एक दफा पॉजिटिव हो गया तो ये स्टिल पॉजिटिव, ओके। बट ये यहाँ पर एक बार दिखा देगा कि हाँ साहब ट्रांजिशन हो गया, मतलब 0 to 1 हो गया, आपको आउटपुट पर ब्लिंक मिल गया, ओके यस द सिग्नल गॉन अप, राइट, द आउटपुट इज वेल टेकन। उसी तरीके से निगेटिव जब हुआ, सो व्हाट हैपेंस इज, यू नो, जब ये 1 से 0 पे गया एट दिस पॉइंट, व्हेन इट इज गॉन 1 to 0, फिर आपको यहाँ पर एक पल्स मिलेगी आउटपुट पर, फिर वो दूसरा लैम्प दैट आल्सो ग्लोस। यहाँ सब नाउ इट हैज कम फ्रॉम 0 to 1 to 0. So this is the way to check whether the transition is happening or not happening. हमारा ये पल्स ड्यूरेशन इनपुट टेस्ट का कितने टाइम के लिए था, और हमने जो है वो नेगेटिव टेस्ट जब एन दबा दिया तो ये 0 आ गया, जब पी दबाया तो ये 0 to 1 हो गया। बट वेदर the things are executed in the program which we have written at the output पर, ये सिग्नल हमारा जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं ये पीएलसी के आउटपुट पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एंड दैट्स द सिग्नल, ओके, बाय सीइंग दैट आउटपुट। आप इसको एलईडी लगा सकते हैं, आपके पास अगर सीआरओ हो तो सीआरओ पर प्रोब लगा के देख सकते हैं। ये जो आपका टाइमिंग डायग्राम पूरा कैप्चर हुआ है, दैट होल कैन बी कैप्चर्ड ऑन सीआरओ, ओके। सो दिस इज हाउ यू नो दिस कैन बी सीन। और टाइमिंग डायग्राम इसी को कहते हैं, जो आपका डिजिटल सर्किट है उसमें कब किस इवेंट पर क्या हो रहा है, कौन सा सिग्नल 0 से 1 जा रहा है, कौन सा सिग्नल 1 से 0 आ रहा है, ऑल इंफॉर्मेशंस आर देयर इन दिस डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी डिजिटल सर्किट ऑपरेशन। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन till now? Yes. तो क्लियर है। Okay, good. So if that is clear, then let's come to this is what all it is written here. When the push button switch, एक minute, hello, हाँ बोलिए। So when the push button switch is pressed and the discrete input energized, the first test lamp blinks on for exactly one scan of the PLC program, then returns it to its off state. जो अभी हमने डिस्कस किया। The positive transition का मतलब 0 to 1 जब गया, the positive transition contact with the letter P inside activates the coil out test 1 only during the scan. It sees the status of in test transition from false to true. 0 to 1 का मतलब false to true. 0 को false भी कहा जाता है, 1 को true भी कहा जाता है. So false to true. Okay, even though the input remains energized for many scans after the transition. Input जो है आपका 1 पे आ गया, अब बार बार energization होता रहेगा, but then you know it will give only one pulse. Conversely, when the push button switch is released and the discrete input de-energizes, the second test lamp will blink on for exactly one scan of the PLC's program, then return to its off state. So जब 1 से 0 गया तो इसका off state में आ गया. The negative transition contact activates the coil out test 2 only during the scan. It sees the status of in test from true to false. True to false का मतलब ये है कि 1 to 0. Even though the input remains de-energized for many scans after that transition, it should be noted that during duration of the single PLC program, scan is typically very short, measured in milliseconds. So that's quite true. जो हमने डिस्कस किया वही है. अब आते हैं, इफ दिस इज क्लियर, इस पर कोई अगर आपको डाउट नहीं है तो नाउ लेट अस समराइज कि अगर आपको पीएलसी डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए या कोई इशू किया जाए, सो यू नो व्हाट यू विल डू, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसका. आप लोगों का सेशनल मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेशनल
फरवरी के लास्ट वीक में शुरू होगा। फरवरी मार्च के लास्ट और फर्स्ट वीक के बीच में होगा मोस्ट लाइकली। अभी कंफर्म नहीं, जब तक नोटिस ना आ जाए आप कंफर्म ना समझे, बट मोस्ट लाइकली। सर यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है क्या लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए? फाइनल ईयर के क्लासेस का कल नोटिस आया है कि फाइनल ईयर की क्लासेस जो है वो 15 मार्च से ओपन होंगी। पंद्रह मार्च से। और हॉस्टल, शायद हॉस्टल में रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो शायद आपको हॉस्टल फैसिलिटी ना मिलने पाए। अच्छा, थर्ड ईयर के रिगार्डिंग अभी कोई है नहीं? थर्ड ईयर के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं है। वो 15 मार्च के बाद फिर वो बताएंगे कि कब थर्ड ईयर खुलेगा, कब सेकंड ईयर, कब फर्स्ट ईयर। तो कल जो नोटिस आया वो तो देखा होगा आप लोगों ने। ये सर यस कल सर, तो फाइनल ईयर का ही था। हाँ, फाइनल ईयर पे 2 मार्च से शायद पीएचडी। एमटेक का खुला है फाइनल सेमेस्टर का, और 15 मार्च से फाइनल ईयर बीटेक और यूजी का जितने कोर्सेज हैं सब। और 15 मार्च के बाद फिर वो बताएंगे कि बाकी और लोगों का क्या। बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। दैट इज व्हाट इज रिटन। एनीहाउ, तो खुल सकता है क्या थर्ड ईयर का इस 15 मार्च सेमेस्टर में? 15 मार्च के बाद ही मालूम होगा क्या डिसीजन होता है यूनिवर्सिटी का। यू विल कम टू नो, दैट्स द अथॉरिटीज डिसीजन। लेट अस सी। So now we will discuss step-by-step method for programming using PLC. The procedure for programming a PLC for a certain application depends on the type of standard manufacturer software tool and type of control application. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि कई कंपनी जो PLC का हार्डवेयर बनाती हैं, फिलिप्स बनाती है, सीमेंस बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी जो बनाती है। सबके हार्डवेयर के अपने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि कोई 16 बिट का है, कोई 8 बिट का है, किसी ने उसके अंदर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस कुछ और लिख रखे हैं, किसी ने उसका सॉफ्टवेयर अपना डेवलप कर रखा है। तो दैट इज ऑल डिफरेंसेस देयर, बट द बेसिक फंडा रिमेंस सेम। जो स्टेप्स हैं, जो फंडामेंटल आप जो पढ़ रहे हैं, दिस इज वैलिड। मतलब लैडर डायग्राम कैसे बनेगा उसका फंडामेंटल सारी कंपनीज के लिए सेम है। हाँ, वो अपने सॉफ्टवेयर में कैसे उन्होंने किया हुआ है वो एक डिफरेंट हो सकता है, बट देन एनसी और एनओ और क्वाइल्स एंड देन द रंग एंड पावर लाइंस, ये सारी चीजें सेम रहेंगी चाहे किसी कंपनी का पीएलसी यूज हो रहा हो। ओके, तो देन दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो किस मैन्युफैक्चरर का आप यूज कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस प्रोग्राम में इस कोर्स में एक लैब होना चाहिए, वो नहीं है लैब हमारे यहाँ। बट लेट अस सी, वी विल सी व्हाट टू डू। सो द फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज एंड गेट द आइडिया ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इनपुट आउटपुट क्या है, कैसे आपको रियलाइज करना है, क्या चाहते हैं आप। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है कि द प्राइमरी स्टेप टू प्रोग्राम द पीएलसी इज टू गेट द आइडिया फॉर विच यू आर गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम। इफ यू आर ड्राइविंग ए लाइन फॉलोअर रोबोट, लाइन फॉलोअर रोबोट का मतलब समझते हैं अभी यस हमने। सर। सर जो हाँ, अपने फॉलो पाथ पे चलता है। सर वो एग्जैक्टली। पाथ फॉलो करता है तो मतलब अपना। यस, तो हमने अभी जब आपकी यूनिवर्सिटी खुली रहती थी तो हमारे यहाँ ट्रिपल के बैनर पे हम लोग टेक फेस्ट कराते थे, तो उसमें रोबोटिक्स का होता था, तो लाइन फॉलोवर होता था। आई मीन एक लाइन बना देते थे और लड़के अपने कंपटीशन जो टीम्स थी वो लेके आते थे और वो उन्हीं लाइंस को फॉलो करते थे, और कितने कम टाइम में और विदाउट एनी एरर जो उसको करता था वो विनर होता था। सो बट दैट इज कॉल्ड लाइन फॉलोवर। सो इस वही एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। सो द प्राइमरी स्टेप टू प्रोग्राम द पीएलसी इज टू गेट द आइडिया। लाइन फॉलोवर रोबोट इसको लिया गया है बाय यूज ऑफ a DC motor when the push button is pressed. This status must be displayed by the LED light when the motor gets turned on. जैसे आपने पुश बटन दबाया, LED लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब मोटर ऑन हो गया है। सो अब वो रोबोट आपका मूव करना शुरू कर दिया। द मोटर इज आल्सो अटैच्ड विद द सेंसर। सो रोबोट जो है वो सेंसर से अटैच्ड है। अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया बीच में, सो आप व्हाट विल हैपन, अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो सेंसर जो है दूसरा स्विच को उसको ऑन कर देगा, टर्न ऑन, और मोटर को ऑफ कर देगा, यानी मोटर शुड गेट ऑफ। ओके, और जैसे ही मोटर ऑफ हुआ तो एक वहां पर बजर अलार्म लगा हुआ है, एंड दैट अलार्म विल
start giving noise. यहाँ से कुछ खतरा है, ये रुक गया यहाँ पर, something is wrong, right? This is a simple example. इसको नॉर्मली रोबोट पे कोई बजर वजर होता नहीं है, बट जस्ट वी आर लर्निंग व्हाट टू डू. आई मीन अगर आपको ये करना है तो ऐसे, कुछ और करना है तो कुछ और. आई मीन द पॉइंट इज यू शुड नो करना क्या है, राइट? सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज द स्टेप 1. ओके, नाउ स्टेप 2 क्या है? मेक अ फ्लो चार्ट. ओके, सो अब एक उस अपने ऑपरेशन का फ्लो चार्ट बनाइए. जैसे list all the conditions and get the design using flowchart. The variables of the above project are motor, then motor A पर लगा हुआ है, M is motor, A is input 1, B is input switch 2, L is LED, BU is for buzzer, and the designing of the logic is easy with the implementation of flowchart which gives here. So you see here, start, आपने start किया, switch on A and switch on C, switch on B off है, ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन सी को आपने ऑन किया, राइट? सो और स्विच ऑन बी ऑफ है. अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो ये स्विच ऑन को, स्विच को बी को ऑन कर दीजिए और वो बजर को ऑन कर देगा, मोटर को ऑफ कर देगा. और अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो मोटर इज स्टार्टेड एंड एलईडी इज कंटिन्यू टू ग्लो. सो दैट इज हाउ इट विल फॉलो द लाइन. सो दैट इज, ये क्या करना है और ये कैसे होगा, दैट इज टू बी डिफाइंड इन फ्लो चार्ट. तो ये देखिए, आपके में यू आर एन इंजीनियर, यू आर गोइंग टू प्रोग्राम इट, यू आर गोइंग टू डिजाइन इट, और वो जो मार्केट में बिक रहा है एक इंडिविजुअल उसको खरीदेगा. सो ही इज नॉट डिजाइनिंग, ही डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इनसाइड. उसको तो आउटपुट एप्लीकेशन चाहिए, मगर आपने डिजाइन किया है तो आपको उसके इनपुट का तिया पांचा सब मालूम होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली उसके अंदर एक एक चीज, एक एक स्टेप कैसे डिफाइंड है. बिकॉज दैट्स व्हाट you are important. That is why you are important. Engineers are important because आपने इसको डिजाइन किया है, आपको सब मालूम है इसके अंदर का, और ये आप डिजाइन करते हैं और फिर कंपनी आपको इसी बात के, आपके स्किल का आपको सैलरी देती है, राइट? सो द सेकंड स्टेप इज टू मेक द फ्लो चार्ट यूजिंग all the conditions. Now third step, open and configure the PLC programming software. ये किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का है, आप जिस भी कंपनी का लेंगे वो साथ में सॉफ्टवेयर देगा. उस सॉफ्टवेयर में ये आपको इस तरीके से प्रोग्राम करना है. एज आई सेड कि उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं, SFC, STC, LD, प्रोग्राम, फंक्शनल ब्लॉक, फंक्शंस, so many things are given, but the basic funda remains same. कि आपको कॉन्ट्रैक्टर, ये 2 पावर लाइन्स है, उसके बीच में आपको सारी अपनी प्रोग्रामिंग करनी है. दैट इज कॉल्ड रंग. और वो रंग स्कैन होता है, पहले पहला रंग स्कैन होगा, फिर दूसरा स्कैन होगा, फिर तीसरा स्कैन होगा, फिर चौथा स्कैन होगा. दैट विल कंटिन्यू. ओके, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द रूल व्हिचएवर हार्डवेयर ऑफ व्हिचएवर कंपनी यू यूज. बट देन यू शुड नो दैट ओके, ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, देन हाउ टू राइट, मेक द लेटर डायग्राम इन दैट सॉफ्टवेयर. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स वेरी सिंपल. So open the programming software installed in the PC that comes with PLC hardware. Select the hardware model of the PLC in the software and configure it with appropriate input-output modules. Select the ladder diagram from the list of programming languages and choose the hardware processor and give a name for the program. Okay? तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से you have to configure. This is step number 3. Now see step number 4. Step number 4, अब ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये रंग 1 में देखिए M for L, M for M और L for LED और BU for buzzer. तो सबसे पहले रंग 1 ये आपने लेटर डायग्राम बना दिया उसी सॉफ्टवेयर में बेस्ड ऑन योर फ्लो चार्ट. आपने A को प्रेस किया और C को प्रेस किया. जब आपने A को प्रेस किया और B ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में NC, तो ये पाथ पूरा हो गया, मोटर ऑन हो गया. जैसे मोटर ऑन हुआ, C को भी आपने ऑन किया तो ये LED जल गई, राइट? दिस LED इज ग्लोइंग. नाउ इफ देयर इज एनी अगर कोई भी इसमें कहीं पर भी ऑब्स्टिकल आता है तो व्हाट विल हैपन, ये B this will become normal, this will become normal close, और ये बजर बजा, ये पाथ पूरा हो गया, ये बजर इसने ऑन कर दिया, राइट?
जैसे ही इसने बटन ऑन किया तो आपका यानी जो जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो गया। अब इस डायग्राम में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये भी ए है और ये भी ए है, मगर यहाँ पर ए नॉर्मली ओपन है, यहाँ पर ए नॉर्मली क्लोज है, राइट? सो देन हाउ कैन a same contactor be in two different states? Can anyone explain? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? रंग 1 में ए, एक ही प्रोग्राम है ये, ओके? रंग 1 में जो कॉन्टैक्टर ए है वो नॉर्मली ओपन है, और रंग 3 में जो कॉन्टैक्टर ए है वो नॉर्मली क्लोज है। सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट एक ही कॉन्टैक्टर एक नॉर्मली ओपन पे है, एक नॉर्मली क्लोज पे है? हाउ कम? सेम कॉन्टैक्टर कैसे हो सकता है दो स्टेट में एट द सेम टाइम? एनीबॉडी? क्वेश्चन क्लियर? यस सर, क्वेश्चन क्लियर। बताइए। हाँ सर, असलम। हाँ हाँ भाई, कोई आंसर? सर हाँ बताइए। सर इसमें देखा जाए तो तीनों ए बी और सी तीनों में इसी तरह है कि जो नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज है। सर अगर हम ए में जाता है, अगर पावर लाइन से सीधा ए में जा रहा है तो वो नॉर्मली ओपन होगा। फिर अगर हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया है दूसरे, जब हम दूसरे उसमें जाएगा सर गेट्स में, तो हम उसमें नॉट गेट अप्लाई कर देंगे तो उससे सर नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह सर एक नॉर्मली यहाँ ओपन तो है और दूसरा नॉर्मली यहाँ क्लोज तो है। कोई नॉट गेट है नहीं। सर मैं वो लॉजिक गेट की टर्म्स में बात कर रही थी, इस तो तरह से। लॉजिक गेट तो यहाँ होता ना, अगर ऐसा कुछ होता तो। यहाँ तो एक कॉन्टैक्टर ए जो है वो एक जगह ओपन है, एंड दूसरी जगह जो है ये क्लोज है। तो शायद दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हो, नेमिंग सेम है, अलग अलग रंग के लिए सर वो अलग तो अलग। इनपुट सिग्नल है ना सर। कौन बोला अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है? सर हम सर बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अलग 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 हैं सर, कॉन्ट्रैक्टर हैं। और इनपुट एक ही जा रहा है सर दोनों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अच्छा जी, देखिए इसका जवाब यही है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग ही होंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम वो ओपन में हो और वो क्लोज में हो, राइट? यस। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है, पर फर्क क्या है? दोनों का पोर्ट एड्रेस एक है। एक नॉर्मल ओपन कंडीशन में है, दूसरा नॉर्मल क्लोज कंडीशन में है, बट दोनों का पोर्ट एड्रेस एक है, राइट? अगर वहां पर 1 आता है तो ए, जो रंग 1 में ए लगा हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, और जो रंग 3 में ए लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा। आई मीन अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस दोनों सर। का एड्रेस एक है, मगर दोनों कॉन्टैक्टर अलग अलग हैं। एड्रेस इज सेम, तो जो इनपुट सिग्नल आएगा वो इनपुट सिग्नल दोनों इनपुट सिग्नल, व्हाट विल हैपन, दोनों इनपुट सिग्नल सेम होगा दोनों कॉन्टैक्टर के लिए। या दोनों, आप ऐसे कह लें कि दोनों का एड्रेस सेम है, राइट? मगर एक ओपन कॉन्टैक्टर है और एक क्लोज कनेक्टर है। भाई जैसे मान लीजिए कि मैं रह रहा हूँ क्वार्टर नंबर 4 में, और क्वार्टर नंबर 4 में एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की खुली हुई है, फर्स्ट फ्लोर पर खिड़की ओपन है, मगर एड्रेस तो क्वार्टर नंबर 4 ही रहेगा ना, राइट? तो उसी तरीके से दोनों का एड्रेस सेम है, इसीलिए ए वहां भी लिखा हुआ, ए वहां भी लिखा हुआ है, मगर एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। तो सिग्नल अगर जीरो जीरो आया तो नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मली क्लोज रहेगा, नॉर्मली ओपन वाला नॉर्मली ओपन रहेगा। और अगर सिग्नल अगर 1 आया तो वो ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट विल, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे ये। इज दैट क्लियर? यस सर। सो ये होता है, मैंने डिलिबरेटली ये एग्जांपल लिया था ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि ये जब लॉजिक आप लिखते हैं तो ये हो सकता है कि
दो कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के अपोजिट एक ही प्रोग्राम में हो, राइट? सो देन you should not get confused. Yes, this is possible. This is possible. Only thing is their address, input address, जो PLC में address है वो same होगा. So that is how this run diagram is made. Then फिर आप जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं वैसे इसको रन करिए, रन करके सिमुलेट हो गया. फिर आप प्रोग्रामिंग जो PLC CPU मेमोरी है इसको आप डाउनलोड करके क्या हो, बेसिकली वो हार्डवेयर में पुश कर देते हैं. अकॉर्डिंगली आपका हार्डवेयर आउटपुट काम करने लगता है. बेसिकली पहले आप इसको सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करके आप चेक कर लेते हैं whether everything is fine. फिर आप उसको इस मेमोरी को बर्न करते हैं और then you get your program done. Okay, so I'll stop here. If you have any doubt, you are welcome to ask. Any doubt to anyone? No? नो सर. आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं, फिर जब मैं पूछता हूँ तो आप लोग बोल जाते हैं. So are you enjoying this subject or it's boring subject? डिफरेंट है सर थोड़ा. अच्छा है सर, अच्छा है सर. ये एप्लीकेशन बेस्ड है सब्जेक्ट. जैसे फील आती है सर थोड़ी थोड़ी. हाँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन. वही मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि मैं ये सब्जेक्ट दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने अभी तक इसकी लैब सेटअप करवा दी होती. बट एनी हाउ, चलिए मैं देखता हूँ अगर एक आध महीने में या आपके सेमेस्टर खत्म होते हो तो मुझे कहीं से कुछ हार्डवेयर का जुगाड़ मिल जाता है. सो आई विल शो यू द डेमोंस्ट्रेशन इन हार्डवेयर. एनी आउट एनी रोल कॉल संजन कुमार. हाँ बोलिए. सर ये सॉफ्टवेयर जो है सर हम लोग को सीखना पड़ेगा या फिर वो पहले से इनबिल्ट आती है? वो हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर है. जो हार्डवेयर आप खरीदेंगे उसके साथ वो कंपनी सॉफ्टवेयर देगी. कोई बहुत मुश्किल नहीं है वो. आपको अगर ये PLC का बेसिक फंडा क्लियर जो आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं वो क्लियर है तो सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. एक दो प्रोग्राम Okay, आप sir. के सर जो इन्वायरमेंट होता है तो वो तो अलग ही होगा ना. तो हर कंपनी का सर अपना अपना इन्वायरमेंट होगा करने का. नहीं, अब तो GUI बेस्ड आ रहे हैं. विंडो पे आप रन कर सकते हैं कोई भी. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है दैट इज कमिंग और PLC डायग्राम आप उसमें बना सकते हैं. सो नो इशू, सारे विंडोज को रन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है. ओके.